جی عثمان صاحب وی آر لائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی دیر سے خواہش تھی کہ کچھ باتیں ایسی جو کہ اکثر میرے سے پوچھی جاتی ہیں اور کچھ تشنگی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ یار یہ باتوں کو جواب ہمیں صحیح پراپر مل نہیں پا رہا. پاکستان میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کے لیے, ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی ایسی ہیں کہ وہ سمجھ آنے والی نہیں ہیں. تو I have got an opportunity to invite Mr. Usman Chughtai and I welcome Mr. Usman sir. جی السلام علیکم. اور this is a good news for us کہ عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اور مجھے a lot of questions جو ہیں وہ آڈینس نے اور ویورز نے بھیجے میں. عثمان صاحب لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن میں ول ٹرائی ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ ہم کام کی بات کر سکیں. ویری ایزی ویری کنسائز ہم رہنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا ایک بڑا لائٹ سا کوشچن ہے, یہ کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن میں آپ مختصر سا بتائیں کیسے اپنا سارا دن آج کل گزار رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ شبان صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو لاک ڈاؤن ایک اپرچونٹی لگ رہا ہے. آج صبح میں اپنے ایک مینیجر سے بات کر رہا تھا اور میں بول رہا تھا کہ بھائی اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم لوگوں کو یہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے. So I see no difference in my working routine. In fact, I believe کہ I'm more productive. مجھے بھی ٹریولنگ نہیں کرنا, مجھے لاہور نہیں جانا, مجھے آفس نہیں آنا, آفس آنے کا ٹائم نہیں, جانے کا ٹائم نہیں. مجھے آفس کے اندر روز بہت سے لوگوں کے لیے کھانے کے ارینجمنٹس نہیں کرنے. وہاں پر سٹاف جو ہے ابھی کبھی نماز پڑھنے گیا ہے, کبھی واش روم میں گیا ہے, مطلب so many issues, right at the moment ہم لوگ صبح لاگ ان کرتے ہیں, صبح ہماری میٹنگ چلتی ہے, اس کے بعد ایگزیکٹلی سیم پیٹرن کے اندر سب کو کام دیے جاتے ہیں. اور مطلب وی آل بلیو ہم لوگ ایک پورا میکانزم یوز کرتے ہیں جس سے ہمارے سارے اسٹاف کی انکلوڈنگ می سب کی کمپلیٹ پروگرس ٹریک ہوتی ہے. تو میں پچھلے 3-4 ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پروگرس کے اندر 30 سے 35% انکریز ہوا ہے. So that's what how we are basically going forward. یعنی کہ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ یو آر انجوائنگ لاک ڈاؤن تو یہ غلط نہیں ہوگا. یو آر پرفارمنگ مور دین دا ان لاک ڈاؤن. other than the sales پہ کافی فرق پڑا ہے, لیکن وہ میرے خیال سے گریجولی 3 سے 4 ہفتے بہتر ہونا شروع ہونی ہے. لیکن ادر دین دیٹ آئی بلیو پیٹرول کا کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے فیملی کے لیے, پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, لرننگ کے لیے. صحیح ہو گیا سر. اچھا عثمان صاحب چلے یہ تو ہو گیا تھوڑا سا انفارمل. تو لیٹس کم ٹو the questions people have sent to ask you. تو اس میں ایک بڑا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں برانڈ بنانے کے لیے, پاکستان سے ایک برانڈ جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے ہاؤ مچ کاسٹ, پیسے کتنے لگتے ہیں اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اس میں کوئی اندازہ بتا دیں. I'm not asking you to quote us the correct figure. اچھا میرے شبان صاحب میرے یہاں پر ابھی کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ مجھے انڈیا سے فالو کرتے ہیں, رائٹ. اور ابھی عارف سماج صاحب کا مجھے انڈیا سے پیغام یہ میسج نظر آ رہا ہے, اگر آپ ان کا میسج اسکرین پہ دکھا سکیں. جی السلام علیکم ایوری ون, جو مجھے انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. کویسچن شبان صاحب کا یہ ہے کہ ہمیں ایک برانڈ بلڈ کرنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے. میں اس کے عمومی طور کے اوپر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا علم سوال میں ہے. تو عمومی طور کے اوپر میرے سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو میں اس کے اگینسٹ ایک سوال پوچھتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی لگے. تو خواتین سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ خواتین کو میک اپ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے شبان صاحب, رائٹ. تو ہر خاتون کا نا ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے. بعض خواتین 5 منٹ میں تیار ہو جائیں گی, بعض خواتین 6-3 گھنٹوں میں بھی تیار نہ ہو. اسی طرح مرد حضرات سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ کام سپوز یہ ایک پیراگراف ہے کتنی دیر میں یاد کر لو گے, یا یہ آپ کام کتنی دیر میں کر لو گے, تو ہر شخص کی اپنی ایک ورکنگ کیپیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے.
हमें ये समझना है शुभान साहब कि हम लोग अल्लाह ताला ने हमें जो कैपेसिटी दी है, क्या हम लोग उसका ठीक इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। हर एक की टाइमलाइन डिफरेंट है। हम लोग एक दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन लोगों ने स्टार्ट लिया मेरे से पहले प्रोफेशनल लाइफ का, वो बहुत सक्सेसफुल हुए, उन्होंने बहुत कामयाबियां समेटी, लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो शायद अभी इस दुनिया में ही नहीं है, और चंद ऐसे हैं जो बिजनेस फेलियर करने के बाद कहीं आराम से स्कूल से बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल जी शायद बिल्कुल। आप और यो आप अपने एंड की ऊपर आप बात कर सकते हो। जी उस्मान साहब, इसमें मैं आपने जो बात की है कि टाइम कितना दरकार होता है, और बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है कि खवातीन के मेकअप की और एक पैराग्राफ टाइप डाउन या ट्रांसलेट करने की। ये जो इसमें जो ब्रांड बिल्डिंग है, ये बेसिकली हवा बन गया है पाकिस्तान के अंदर। आप जब ये कहते हैं कि ब्रांड्स बनाएं और इसको लॉन्च करें, बेसिकली मैं इस पे तो ज़्यादा बहस नहीं करूंगा कि ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप इसको अपने बहुत सारे पूरी मैं पिछले साल 2 साल 3 साल से आप इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वही दुकानें जो आपकी यहाँ पर होती हैं फिजिकल, उनको आप उठाकर लेकर उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंटरनेट पर कर देते हैं। तो इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट इट्स अ मार्वलस कंट्रीब्यूशन, और जो मतलब ये दिस इज अ वॉलंटियर। लेकिन मैं इसमें एक और भी चीज आपसे कहूंगा कि बाज़ औक़ात इंसान इन सारी चीजों से थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से doesn't you feel sometimes it's a thankless job that you are teaching to the people? चले मेरे ख्याल आपकी तरफ अजान हो रही है, अजान जैसे खत्म होगी इंशाल्लाह ताला। ओके, तो मेरी तरफ अभी अजानें नहीं शुरू हुई, तो मैं इसमें मुझे समटाइम्स उस्मान साहब ये फील होता है कि जब हम किसी का भला करते हैं ना, तो उस बंदे को समझ नहीं आती इस चीज की कि यार ये उसका भला हो रहा है, वो उसमें कीड़े निकालने शुरू करता है, नेगेटिव की तरफ भी ज़हन जाता है। और जब भी कोई आपको किसी फ्यूचरिस्टिक बात की तरफ लेकर जाएगा, तो हम सबसे पहले उसको शक की निगाह से देखते हैं। ये एटीट्यूड्स आपने फेस किए होंगे। तो समटाइम्स इट फील्स कि यार आई शुड क्विट, लेकिन मैंने आपकी ये पावर देखी है, मतलब यू आर कमिटेड एंड यू आर गोइंग टू टीच एवरीबॉडी, एंड ये एक लाइव सेशन करना इज वन ऑफ देम। यू हैव टू स्पेयर योर टाइम, यू हैव टू स्पेयर योर थॉट्स इवन ऑल्सो, कि आपने थॉट्स को कंसंट्रेट करना होता है कि यार ये मैंने आज डिलीवर करना है। यू आर लॉन्च योर यूट्यूब चैनल, योर यूडेमी कोर्सेज, एज वेल एज आपके फेसबुक पे बड़े लाइव सेशंस हैं। इफ एनीबॉडी वांट्स टू क्रिएट अ ब्रांड, तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो ये चीजें ओपन सोर्स है, ओपन सीक्रेट्स हैं। ये उनको अगर वो फॉलो कोई भी करता है, तो बात यह है कि उस्मान साहब आपको लाइव लेने का आज मकसद ही ये है कि जो असल बात है ना, जो बड़ी आसानी से समझ आ सके किसी को, वो हम समझें। देखें, आपने किसी को डंडा मार के या किसी के तरले करके तो किसी को नहीं कोई बात समझानी। ये जो गुफ्तगू होती है, मैं जो आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनका जवाब दे रहे हैं, इसी में हमारे लिए सारे जवाब मौजूद हैं। इफ वी आर कमिटेड टू डू समथिंग, सबसे पहली तो बात ये है। राइट शुभान साहब, थैंक यू सो मच मुझे ब्रेक देने के लिए। कुछ गुजारिशात हैं, जिनमें से पहली गुजारिश, जिस तरह आपने कहा कि जी ब्रांड जो है उसको कितनी देर लगती है। देखें, मैं ये समझता हूँ मंजिल जो है, मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं होती, मंजिल की जुस्तजू और सफर अहम है। हमें आप छोटी सी दुकान डाल लीजिए, आप छोटा सा इंटरनेट के ऊपर शॉप डाल लीजिए, तो वो आपका ब्रांड है। ये जरूरी नहीं है कि आपको आपको $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड करना है, $1 बिलियन ब्रांड बिल्ड करना है। अगर नोकिया कहीं पर पहुंची तो उसके पीछे उसको 200-250 साल लगे। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट या जितनी भी दुनिया की टॉप कॉर्पोरेशंस हैं, उनको कई अशरे लगे आज जहां पर हैं उनको पहुंचने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए। उसकी जिंदगी के अंदर कई दफा अप्स आए,
डाउन हुए, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की, तो बैंकरप्सीज फाइल की, और इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर जो है, आप किसी एक की जिंदगी पढ़ के देख लो, आप इलॉन मस्क की जिंदगी पढ़ के देख लो, आप जेफ बेजोस की जिंदगी पढ़ के देख लो, आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की जिंदगी पढ़ के देख लो, आप जो केएफसी का फाउंडर है कलोनल सैंडर्स, आप उसकी जिंदगी पढ़ के देख लो. सो लाइफ इज लाइक दैट. हमें लाइफ इज लाइक ए जर्नी, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन. तो मैं जब बात करता हूँ ब्रांड्स बिल्ड करने की, देखिए सियालकोट की इंडस्ट्री आज जहां पर पहुंची है, लाहौर की जो हमारी इंडस्ट्री है, गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी होम बेस्ड बिजनेस है, वो जहां पर जिस जगह पर भी है, आप किसी भी नाम से आप अपनी एक जो दुकान है उसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर लो, तो दैट विल बी योर ब्रांड. अब वो ब्रांड कितना सक्सेसफुल होता है और कितना बड़ा होता है और उससे कितने लोग फायदा उठाते हैं, ये एक अलग से बहस है. लेकिन आपको यू नो वन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट. और अपनी दुकान को जब आप नाम अपनी दुकान डालते हो, एक कारोबार करते हो, और उस कारोबार को जब आप ग्लोबल कर देते हो, तो आपने एक इंटरनेशनल ब्रांड की जो है बुनियाद डाल दी. बिल्कुल. तो उस्मान साहब, आप इसमें इसको फिगर आउट करेंगे थोड़ा सा कि हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा कितना इन्वॉल्व है इसके अंदर और टाइम कितना फ्रेम, ये क्वेश्चन जरा मुझे क्लियर कर दें प्लीज. सुभान साहब, मैंने जब ई कॉमर्स की बिजनेस के अंदर में आया, तो मेरे पास मिलियंस मिलियंस रुपीस का मेरे पे डेट्स थे. ठीक है, आई वॉज अबाउट टू फाइल, पाकिस्तान में तो खैर बैंकरप्सी फाइल नहीं होती, मेरे क्रेडिट कार्ड्स बंद हो चुके थे, बैंक्स मेरे बंद हो चुके थे, मिलियंस ऑफ रुपीस मेरे पे लोन था. तो उस सूरत तब मैंने हम लोगों ने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया. $30 पर मंथ के ऊपर याहू स्टोर मिला करते थे. मैंने याहू का स्टोर लिया और उसके ऊपर मैंने अपना पहला ई कॉमर्स स्टोर जो है बिल्ड किया, और पहले दूसरे हफ्ते मैंने पहली सेल ले ली. ठीक है, तो उसके बाद जब आप दूसरे हफ्ते सेल मैंने ले ली, तो उसके बाद इट वाज नेवर एंड के बाद उसके बाद सेल्स के ऊपर सेल आना शुरू हो गई. तो भाई ई कॉमर्स के अंदर होता क्या है शुभान साहब, कि आपको कोई टेक्निकल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अदर देन टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के. अगर आप थोड़ा सा थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट जानते हो, थोड़ा सा आप कंप्यूटर समझते हो, आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, अपनी एसईओ सीख सकते हो, तो आप अपना अपना स्टोर डाल सकते हो. ये ही इन्वेस्टमेंट है. हम लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर में सब लोग, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ये आपको बताता चलो, हम एडवांस पेमेंट लेते हैं. सपोज आज जितने ऑर्डर्स मुझे आज आ रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, $1,000, $2,000 या $3,000 के वेबसाइट पे ऑर्डर्स आए हैं, ये ऑर्डर्स हमने नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्पैच करने हैं. दैट मीन्स कि हम लोग टेक्निकली बिजनेस ऑपरेशन सारे रन करने के लिए वी आर नॉट यूजिंग एनी कैपिटल. टेक्निकली वी आर यूजिंग कस्टमर्स पेमेंट. So जी zero बिल्कुल सही. investment is needed in fact. जीरो इन्वेस्टमेंट जी, मतलब यू हैव टू कमिटेड. और सबसे पहली बात, दूसरी बात ये कि यू शुड लर्न समथिंग अबाउट द वेब डेवलपमेंट, और उसमें जो कंप्यूटर स्किल्स हैं थोड़ी बहुत वो आपको आनी चाहिए. उस्मान साहब, मुझे ये क्वेश्चन आया कि उस्मान साहब से ये पूछें कि ये ब्रांड बनाने के लिए कोई बड़ा को 10 लाइन या 5 लाइन कोई आप स्टेप्स हमें बता दें कि आसान ज़बान में, चूंकि हमारे ये व्यूअर्स जो हैं, ये वीडियो जो है ये सब तक जाएगी, उसमें कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस रोशनी के रास्ते पे आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास स्टेपिंग नहीं है. दे जस्ट वांट टू नो. आप उसको जरा कट डाउन कर दें, शॉर्ट डाउन, उसको कट शॉर्ट कर दें और जरा इसको एलैबोरेट कर दें 10 पॉइंट्स में या 5 पॉइंट्स में कैसे ब्रांड बनाया जा सकता है. देखें शुभान साहब, जो ब्रांड है ये आपकी पहचान है. दूसरा, हम लोग, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारा ब्रांड है. हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये हमारी पहचान है. हम लोग जितने एतमाद से जाके
अपना ग्रीन पासपोर्ट, आप देखिए हम लोग में से कितने लोग अपना ग्रीन पासपोर्ट फखर से दिखाना चाहते हैं। आई वॉज ट्रैवलिंग, तो मुझे वहां पर अमेरिका में कुछ दोस्त बैठे थे, तो वो कहने लगे यार मैं तो जब भी किसी वो पंजाबी में इमिग्रेशन काउंटर पे जाना, मैं तो अपना पासपोर्ट छुपा के रखना, किसी ने पता ना चल जाए कि मैं पाकिस्तानी हूं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे अपना पासपोर्ट छुपाने की जरूरत पड़ी हो। मैं फख्र फील करता हूँ अपने पाकिस्तानी होने पे, क्योंकि मुझे मेरे रब ने इस मुल्क में, इस मिट्टी में पैदा किया है, और सही। हर उस शख्स को फख्र होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिनके कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिनका कोई ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल नहीं है, वो अपने आप पे फख्र करते हैं। हम लोग यहाँ पर दुकान में जाते हैं और हम लोग पाकिस्तान की कॉटन दुनिया की बेस्ट कॉटन है, लेकिन शॉपकीपर में बेच रहा होता है इम्पोर्टेड माल है जी। यार आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हमें हर इम्पोर्टेड चीज अच्छी लगती है। तो जब तक हम लोग अपने आप पे नंबर वन, अपने आप पे, अपनी मिट्टी पे, अपनी प्रोडक्ट्स पे फख्र करना सीखें, अपने नाम के ऊपर फख्र करना सीखें, ये सबसे पहले है कि आपको गुलामी से निकलना पड़ेगा। जो गोरा 100 साल हमारे पे गुलामी कर गया ना, हमारे बाओ अजदाद के ऊपर, वो 3 नस्लें गुजर चुकी हैं भाई, इससे निकल आओ बाहर। पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं, मुझे मुझे कहीं पर भी किसी जगह पर भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं फख्र से बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं जा गया, वहां पर सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, राइट। मैं ये आपको इसलिए वाकया बताने लगा हूँ कि जब आप अपनी इक़्तिदार पर फख्र से कायम रहते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहां पर एवरीवन वाज ड्रिंकिंग, हर शख्स को 2 बॉटल्स जो थी वाइन की या शराब की फ्री दी जा रही थी। तो हर एक उस कॉन्फ्रेंस में हर बंदे को 2 टोकन्स दिए जाते थे। तो मुझे टोकन्स मिले, तो वहां पर मैं फेंक नहीं सकता था, तो आई वाज सर्चिंग समबडी। मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट ड्रिंक ना। इमीडिएटली आफ्टर दैट वहां पर जो 2 या 3 गोरे जिनसे मेरी बिजनेस मीटिंग चल रही थी, दे रियली अप्रिशिएटेड दैट। इवन वन, उनमें से किसी एक ने बोला कि भाई आई वाज ट्राइंग, कि मैं पिछले 3 सालों से शराब छोड़ने का सोच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यस हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। तो लेकिन बेशुमार मैंने पाकिस्तानी ऐसे देखे हैं जो बोलते नहीं शराब पिए बगैर बिजनेस नहीं मिलता। तो देखें इसी तरह से ब्रांड्स हैं। लिवाइस जो है ये भी एक ब्रांड है, ठीक है। किसी लिवाइस, मिस्टर लिवाइस ने ये बिल्ड की, जिस तरह टोयोटा करोला है, हमें मित्सुबिशी है, भाई ये फैमिली नेम्स है। हम लोग मजे से बोलते हैं जी मेरे को टोयोटा करोला है, मेरे को मित्सुबिशी है। और भाई किसी को नहीं पता मित्सुबिशी क्या है। ये एक फैमिली ब्रांड था, फैमिली नेम था, उसने अपने फैमिली नेम के ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया। इसी तरह लिवाइस भी एक फैमिली नेम था, इसी तरह टोयोटा भी एक फैमिली नेम है, इसी तरह निसान भी एक फैमिली नेम है। इसी तरह जो इस तरह बिल गेट्स है, बिल गेट्स जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, उसी इसी तरह, सॉरी माइकल डेल की बात कर रहा हूँ। जिस तरह माइकल डेल है, डेल कंप्यूटर्स का मालिक, फाउंडर, उसने अपने फैमिली नेम के ऊपर बिजनेस रखा। भाई आप अगर आपके पास पैसा है, आप एक बड़ा ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, आप अपने फैमिली नेम के ऊपर बिजनेस शुरू कर दो, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस। आप सपोज गिल स्पोर्ट्स से शुरू कर दो, आप बट क्या उसका नाम है स्पोर्ट्स से शुरू कर दो, आप बट लेदर हो सकता है, प्राइस से शुरू कर लो, डजंट मैटर। मिर्जा आप सर्जिकल हो सकता है। मिर्जा से शुरू हो सकता है, यस, हाँ से। आप अपना, आप देखिए आपकी पहचान कि जिस तरह हम लोग अपने नाम के साथ उस्मान में चुगताई लगाता हूँ, ये मुझे मुमताज करता है। दैट माय नेम इज माय ब्रांड। जब मैं उसके बाद इंटरनेशनली जाता हूँ, मैं लिखता हूँ उस्मान चुगताई फ्रॉम पाकिस्तान, सो दैट्स माय इंटरनेशनल ब्रांड। जब ई कॉमर्स वर्ल्ड में मैं आता हूँ, तो मेरी जो वेबसाइट्स हैं, मेरे बिजनेसेस हैं, वो मेरे ब्रांड है। तो मैं ये समझता हूँ और उन तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपके दिमाग में अगर ऐसा भी नाम आता है, सपोज फुसफुस भी आता है आपके दिमाग में, तो फुसफुस कैन बी अ ब्रांड, राइट। यू जस्ट नेम इट। अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को एक नेम दो, उसकी इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस क्रिएट करो। पीपल विल, मतलब आपको नहीं मालूम कि मित्सुबिशी का क्या मतलब है ना, तो गोरे को भी मालूम नहीं है फुसफुस का क्या मतलब है। यू जस्ट कम अप विद समथिंग, लोग आपको फॉलो करेंगे। But it should be unique one. Yes, that should be unique one, that should be short one, that should be, मतलब उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, इजी टू स्पेल होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, उसकी डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए। सही हो गया जनाब।
अच्छा, इसमें उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि जो उसके स्टेप्स हैं कुछ 4-5 शॉर्ट कर दें ज़रा, कि ये कि बुनियादी काम है जो आपको ब्रांड बनाने के लिए करने हैं। देखें शिबान, मैंने अपने कोर्स के अंदर ये चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं, लेकिन जब मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, वेरी स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की बात करता हूँ, देखिए सबसे नंबर वन, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग सियालकोट से देख रहे हैं, जब आपने ब्रांड बनाना है तो फॉर गॉड सेक जो आपको डोमेन्स लेनी है ना, वो आपने ऐसे नहीं लेनी कि रशीद इंटरनेशनल, राइट, या रशीद सपोज ट्रेडर्स, नो। ब्रांड मीन जिस तरह आपका सिंपल है ना, आपका मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड इज अ ब्रांड, कोको कोला इज अ ब्रांड, लिवाइज इज अ ब्रांड, ये आप समझ लो सर्विस इज अ ब्रांड, माइक्रोसॉफ्ट इज अ ब्रांड। मीन्स कि आपने साथ जब भी डोमेन लेनी है इंटरनेशनल, आपने डोमेन के अंदर नहीं लेना, आपने ट्रेडर्स डोमेन के अंदर नहीं लेना, आपने आपने ऐसा डोमेन नेम चूज करना है नंबर वन जो इजी टू रिमेम्बर हो, शॉर्ट हो, जो आपके बिजनेस को भी डिस्क्राइब करता हो। और इसके अलावा अगर आप बोलते हो तो मैं इसके अंदर अपनी सारी आपको कुछ एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर जो डोमेन नेम्स के बारे में वो कुछ चीजें रिकमेंड करते हैं कि डोमेन नेम्स दैट आर इजी टू टाइप एंड रिमेम्बर। ठीक है, आपने अवॉइड करना स्लैंग टर्म्स के से आप लोग मतलब अब डोमेन नेम्स बाय करें, और जो आपने शॉर्टर डोमेन नेम कोशिश करें बाय करने के, प्रेफरेबली आप डॉट कॉम लें। अगर डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है तो देन आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में हो तो यू कैन बाय डॉट शॉप, यू कैन बाय डॉट स्टोर, नेम चीप डॉट कॉम के ऊपर जाओ एंड यू विल हैव सो मेनी, इसको हम लोग बोलते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। आप लोग जो है कोई भी टॉप लेवल डोमेन बाय कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूँ, आपने किसी जो ट्रेडमार्क है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसी और कंपनी का, लाइक कोका कोला है, नाइकी है, या इस तरह की डोमेन्स बुक नहीं करनी, अदरवाइज आपसे वो बिल्कुल सही हो गया उस्मान साहब। एक तो आपका ये ना, आप ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें डोमेन के मामला हैं सारे वो होने चाहिए। सेकंड स्टेप, हमारे पास कोई आउटसोर्सिंग भी होनी चाहिए जहाँ से हमने माल लेना है, या इसकी डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ। शुभान, ये देखें, ब्रांड जब आप बिल्ड करते हैं तो नंबर वन आपको, देखिए आप ये बड़ा आपने क्लीविंग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, जो खास तौर के ऊपर वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता है उनको समझना है। जब हम लोग ब्रांड की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम लोग उस ब्रांड की मार्केटिंग की बात करते हैं, हम लोग उसकी नेमिंग की बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी होती हैं, उनकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर उनकी ब्रांड, उनके नाम की, उनकी नाम की जो विजिबिलिटी है वो जीरो होती है, जीरो। तो जब भी हम लोग कभी बात करेंगे ब्रांड से मुराद लेंगे, आप ब्रांड से मुराद सिंपल नाम ले लो कि आपका नाम इंटरनेट के ऊपर कितना पॉपुलर है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जब मैं बात करता हूँ डोमेन नेम से शुरू करने की, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि तमाम सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी वाजिया प्रेजेंस होनी चाहिए, आपकी गूगल के ऊपर बड़ी वाजिया प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल के अलावा सोशल मीडिया, उन तमाम पे आपकी एड्स भी चलनी चाहिए। आपकी जब वेबसाइट के ऊपर कोई शख्स आता है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना आए कि आपने फोटोज लोगों की कॉपी करके लगाई हुई हैं, आपको फोटोज अपनी लगानी है। ठीक है, बेशक आप चंद प्रोडक्ट्स बेचिए, एक प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, लेकिन उसकी फोटोग्राफी प्लीज खुद कीजिए, उसकी वीडियो खुद बनाइए, उसकी डिस्क्रिप्शन किसी अच्छे कंटेंट राइटर से लिखाइए। ब्रांड से मुराद शबान साहब ये है कि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस, आपकी अपनी जात, आप जो हो जैसे हो वैसे ही दिखो। आप जाके किसी को जब कॉपी करते हो तो आप ब्रांड नहीं रहते। तो आप
जैसे हो, जिस तरह की आपको लगता है, आप एक अपनी एक यूनिक एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो दुनिया के अंदर, कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसकी दुनिया में कहीं ना कोई बायर होगा, तो आप उस चीज के अंदर उसके लीडर्स बन सकते हो। जी उस्मान साहब, बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देखिएगा कि क्या आप ये ब्रांड बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए ही रखना चाहते हैं, या इसमें एक तो आपकी जो काबिज जितनी भी आप डिजिटल मार्केटिंग या जो ई कॉमर्स की का आप जो शोर इतनी देर से बचा रहे हैं कि ई कॉमर्स पे आ जाओ, तो आपका ये सिर्फ जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड करके अपनी वेबसाइट बना के और इस तरीके से ही बिजनेस करना है, या ईबे और अमेजोन को भी अब वो आप इस डोमेन में आ रहे हैं उस पे भी आप प्रेफर करते हैं? ये शिवान साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोगों ने 2004 में, मेरे ख्याल से, हम लोगों ने ईबे के ऊपर बेचना शुरू किया। तो एक दिन क्रिसमस थी, और क्रिसमस के अंदर मेरी एक एक दिनों में 5-5, 7-7 हजार डॉलर की सेल हो रही थी। तो जब इतनी ज्यादा सेल हो रही थी, तो मैं ईबे, पेपाल से साथ साथ पैसे विड्रॉ करता जा रहा था। तो साथ ही मुझे क्रिसमस के 24th या 25th डे को, क्रिसमस जिस दिन थी, मेरे ख्याल से मुझे ईमेल आती है कि आपका ईबे अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। Sure. सो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड, व्हाट्स द रीजन। तो उन्होंने बाद में ईमेल की कि जी आपका हाई रिस्क अकाउंट है। यस, आई डिड अ मिस्टेक कि मैंने बहुत सारी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 30-35 हजार डॉलर की सेल कर दी। अब 30-35 हजार डॉलर बेशुमार लोग फ्रॉड करते हैं ईबे के साथ, पेपाल के साथ, क्योंकि पेपाल और ईबे कस्टमर्स को इंश्योर करते हैं कि आपको 100% जो है वो डिलीवरी मिलेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगी, तो उनके अपने कंसर्न्स हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरा अकाउंट बंद हो गया। अब उन्होंने जब मैंने अपील की, सबमिट की, गो के उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया, लेकिन जो मेरे प्राइम डेज थे, मैं उनके अंदर सेलिंग नहीं कर सका। ठीक है, तो अब है ये बात, दूसरी बात जो हमें समझने की है, ईबे क्या है? ईबे भी एक वेबसाइट है। अमेज़न क्या है? अमेज़न भी एक वेबसाइट है। अब इसके ऊपर जब आप लगाते हो, मैं हर उस सेलर को रिकमेंड करता हूँ जो ईबे ई कॉमर्स में न्यूली आना चाहता है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले ईबे के ऊपर, ई क्रिएटर के ऊपर और एडसी के ऊपर अपने एक्सपीरियंस करो, और जबरदस्त। उसके साथ साथ आप अपना ब्रांड, अपनी वेबसाइट बिल्ड करना शुरू कर दो। इसके अंदर ये क्वेश्चन कि मैं उसकी तरफ प्रमोट क्यों नहीं करता, उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं देता, उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर मेरे से बहुत अच्छे ट्रेनर्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें से सनी अली साहब का नाम सरेफरिस्त है। उसके बाद क्या नाम है इनका, वो साकिब मेरे बड़े, अजहर। साकिब अजहर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनसे सीख सकते हैं, तो जरूरत नहीं है उस सूरत में उस चीज पे काम करने की जिसके अंदर ऑलरेडी अच्छा काम हो रहा हो। मैं ये समझता हूँ कि जो अपनी वेबसाइट बनाना, इस पे से सेल करना मुश्किल काम है, लेकिन काफी मुश्किल काम है। ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये आपकी ब्रांड, रियल में आपकी ब्रांड एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी जब वेबसाइट बनाते हो, आप अपनी मर्जी की प्राइसेस में बेच सकते हो। ईबे सही। और अमेज़न आपको ट्रैफिक जरूर देते हैं, क्योंकि ये बड़ी मंडियां हैं, यहाँ पर लोगों की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर कंपटीशन भी, शिबान साहब, बहुत ज्यादा है। आपके उस्मान साहब, यहाँ प्रोडक्ट, पर सॉरी टू जी इंटरप्ट यू, यहाँ पर मैं मुझे जो ये समझ आई आपकी बात की कि वन शुड ट्राई हिज ई कॉमर्स बिजनेस ऑन ईबे एंड अमेज़न, देन ही शुड गो फॉर हिज ओन वेबसाइट एंड ब्रांडिंग। ठीक है। जी लेकिन जो लोग ईबे और अमेज़न पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, दे डोंट वांट टू गेट ट्रेनिंग एंड दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑन ईबे और अमेज़न, तो डायरेक्ट मेथड्स भी कोई हैं ऐसे, आप उसके लिए कोई सजेस्ट करेंगे कि अपनी ही वेबसाइट बनाकर जो है वो एक ब्रांड लॉन्च किया जाए देखिए, बिसाइड्स पाकिस्तान के उसके? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अमेज़न पे काम करना, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज।
मतलब Yes. you have a computer somebody somewhere in America, यूरोप में आपको कंप्यूटर चाहिए, लोग टीम व्यूवर सक्सेस करते हैं, फिर पेपाल बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है पेपाल अमेजोन की कि जैसे ही वो पाकिस्तान से एक्सेस करता है उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। इस तरह पेपाल के बहुत सारे मिसाइल हैं। भाई आपको किसने कहा है पेपाल और अमेजोन, देखें मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी इसके ऊपर वीडियो है, एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो है कि ईबे और अमेजोन जो है वो हर एक के लिए नहीं है। खुदारा भीड़ चाल मत चलें। कोई एक शख्स कामयाब होता है, किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल मत करें। अगर उसने आज से 5 साल पहले ईबे अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो सक्सेसफुल है, तो आज ईबे के ऊपर तब कंपटीशन नहीं था, आज बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स, हर वो बच्चा जिसके पास पाकिस्तान से बाहर कोई रिसोर्स नहीं है, उसको अमेजोन पे बिल्कुल काम करना नहीं चाहिए। और ईबे माइट बी ए गुड ऑप्शन, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करें, या आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम करें पार्टनरशिप की बेसिस के ऊपर जो पाकिस्तान से बाहर है और वो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है। उस्मान साहब, मतलब ये हुआ कि in spite of investing on these two websites, namely Amazon and eBay, they should invest at their own website and build their brand. इसका तो साथ लेके चले तो बेस्ट है, नहीं है तो अपना फिर अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करें। भाई अगर मैं आपको बात बताऊं, मतलब अगर मेरी मतलब वेबसाइट्स की, अगर मैं ईबे के ऊपर और अमेज़न के ऊपर रहूं तो मेरे ख्याल से मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो हमें कोई बचता ही नहीं है, बल्कि नेट हम लोग बस ना शायद महीने के बाद हिसाब करें तो हम लोग नेट लॉस में होंगे। तो स्पॉन्सर वो अपना हिस्सा लेते हैं ना, उसकी वजह से बड़े मामला होते हैं ना। फिर क्या चीज सर? अपने परसेंटेज जब वो लेते हैं और सारे इनके रिस्ट्रिक्शन है, उससे बड़ा ऑलमोस्ट जो है ईबे 12 से 13% ईबे ले जाता है, अमेज़न 30% प्लस ले जाता है आपसे। तो और उस सूरत के अंदर जब आपके ऊपर और नीचे दूसरे सेलर्स भी आप सेम प्रोडक्ट सेम फोटोज के साथ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर आपकी प्रोडक्ट उसी सूरत में बिकती है जब आप बहुत कम मार्जिन के साथ, या इवन मैं बहुत सारे ऐसे अमेज़न सेलर्स को जानता हूं जो सिर्फ अपनी रेटिंग मेंटेन करने के लिए, अपना सेल रेशियो मेंटेन करने के लिए नेट लॉस में बेच रहे हैं कि जी अभी हमने रैंक हायर करना है इसलिए हम लोग नेट लॉस में बेचते हैं, 6 महीने हम लोग जो है ब्लीडिंग करेंगे, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, फिर हम लोग जो है बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। मैं किसी को इस बात बिल्कुल ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। These two mentors, Sunny Ali साहब and साकिब अजहर साहब, also suggest कि जिनकी एज ज्यादा है या जो अपनी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़े से नोन नहीं है, they should not invest in these two websites and उसमें सेलिंग का नहीं सोचें वो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उनके वो बताते हैं कि डायनेमिक्स हैं, उनकी वीडियोज हैं, उनके सेशंस हैं इस बात पे। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इसको सेकंड भी करता हूँ। तो एक जरा मुझे एक प्राइवेट क्वेश्चन आया है जी, एक वो कह रहे हैं जी उस्मान साहब से पूछें, आप ईबे और अमेज़न पे काम करते हैं, अपने ब्रांड तो हैं आपके? देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जब भी आप ब्रांड जो है उसकी समटाइम्स एग्जिस्टेंस हर जगह पे होना जरूरी है, तभी आप ब्रांड बनते हैं। ईबे और अमेज़न बहुत अहम मंडियां हैं, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके नाम की एग्जिस्टेंस कोई और क्रिएट कर लेगा। हम लोग देखें, आप जिस तरह से, मैं मिसाल लेता हूँ, आप पैकेजेस मॉल के अंदर चले जाएं लाहौर में, तो आपको सारी बड़ी बड़ी शॉप्स खाली नजर आएंगी, तो आप सोचते हो कि इस ब्रांड ने इतनी बड़ी शॉप खोल के यहाँ पर डाली और मैंने तो आज तक यहाँ पर कोई कस्टमर देखा नहीं है। तो कस्टमर जो ब्रांड्स हैं वो सिर्फ एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे रखते हैं, सारा बिजनेस वो वहां से नहीं ले रहे होते। लेकिन क्योंकि लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ भाई ये फलाने ब्रांड की फलां जगह पर भी शॉप है, तो इसलिए लोगों को ये ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है आपको अपना एक्सपेंस करना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपसे बोला कि आप अपना गूगल के ऊपर एड चलानी पड़ेगी, आपको फेसबुक पे एड चलानी पड़ेगी, आपको जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी एड चलानी पड़ेगी, तब लोगों का जो बार बार आपका नाम आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करेगा, उनकी स्क्रीनों के ऊपर आएगा, तब
लोगों को आपका नाम याद होगा, और नाम याद रख के लोग आपके ऊपर आएंगे, और इसको टाइम लगता है। बिल्कुल सही। उस्मान साहब, ये कुछ एक क्वेश्चन है मजीद, ये जी जरा जी। आप पढ़ लीजिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है कि माशाल्लाह आप जिस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को एक प्रमोट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की अवाम ये जानना चाह रही है कि आप आइंदा कोई मरबूत किस्म का एक वेल सेटल्ड और ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई लॉन्च करने जा रहे हैं, या प्रोग्राम्स को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें ब्रांड बिल्डिंग स्पेशली डिस्कस हो, और उसमें क्या ट्रेनिंग्स होंगी, उसका कोई ऐसा कोई आपके ज़हन में प्लान है कि जैसे यू आर वॉलंटियरिंग योर सर्विसेज लाइक दिस, उसमें कुछ पेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, तो आपके पेड और वॉलंटियर जो दोनों जो प्रोग्राम्स हैं, उसका आप थोड़ा सा हवाला दे सकते हैं कि आइंदा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप कुछ करने जा रहे हैं? मैं शुभान साहब, आपकी आपके आपके सवाल के ऊपर ना मुझे एक थोड़ा सा वाकया याद आ गया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो सुनाना चाहूंगा। तो वो एक गांव के अंदर कहीं पर सैलाब आ गया, बहुत पानी था, तो सारे गांव को इवैक्यूएट करने का बोल दिया गया। आर्मी ने बोल दिया कि जी गांव जो है कल सुबह तक सारा खाली हो जाए। एक गांव के अंदर वहां पर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, अल्लाह मालिक है। तो वो जनाब बहुत फैमिली ने रिक्वेस्ट की लेकिन वो ना माने। तो जनाब अगले दिन गांव में पानी आ गया, तो पानी जो है उनके दरवाजे तक आ गया। तो बाहर से गाड़ी गुजर रही थी, तो उसने कहा बाबा जी दरवाजे तक पानी आ गया है, हम निकल रहे हैं, आप हमारे साथ बैठ जाइए। वो कहने लगी मेरा अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता, जाओ मैंने नहीं जाना। जनाब पानी ऊपर चढ़ते चढ़ते एक छत तक आ गया उनकी, बाबा जी छत के ऊपर चढ़ गए। तो जब छत के ऊपर चढ़े तो एक कश्ती जो थी आर्मी की, आप छत के ऊपर चढ़े हो, कश्ती में बैठ जाओ, पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। बाबा जी कहने लगे कि मैं, अल्लाह मालिक है, मैं नहीं चढ़ूंगा, अल्लाह ताला मुझे जो है तो बचा लेगा। तो उसके बाद कश्ती चली गई, उसके बाद फिर पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। बाबा जी अपनी दूसरी मंजिल पर चढ़े गए और आखिरी मंजिल पर चढ़े गए। तो उसके बाद जनाब फिर आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर भेजा और बाबा जी के तरले डाले कि बाबा जी आ जाए, लेकिन बाबा जी ना माने। तो उसके बाद सब अंजाम जानते हैं कि बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद ना मेरे ख्याल से इस कहानी से हमें ये सबक मिलना चाहिए, समझना चाहिए, अल्लाह ताला खुद नहीं आता, अल्लाह ताला इंसानों की सूरत में आपको रास्ते भेजता है, आपके लिए आसानियां भेजता है, आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो अक्ल रखते हैं, ठीक है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जो दिल की निगाह से देखता है उसको उसकी हर चीज के अंदर, हवा के अंदर, पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, अपनी जात के अंदर भी उसकी जात नजर आती है। तो कोई शक नहीं। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से हमें ये समझना है कि मैं पिछले एक साल से नहीं कई सालों से चीख रहा हूँ, 2013 से मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ कि भाई ये मेरा एक बिजनेस मॉडल है, ये ये पिछले देखें, आपके 15 सामने सालों से। क्वेश्चन भी आ गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब हम पूछ रही है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? जी मेरी क्लासेस जो है, आपने आपने कभी अभी किस ये आपने पूछ रहे कभी हैं सब। आपने कभी शाहरुख खान की क्लासेस ली, लेकिन आप शाहरुख खान की मूवी देखते हो, आप सलमान खान की मूवी देखते हो, आप आर्नल्ड की मूवी देखते हो, आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हो, कभी आप ड्रामे देखने के लिए उनके पास गए हो कि यार हमने आपका ड्रामा देखना है, हमें लाइव दिखा दो? भाई जब आपको पूरा कोर्स यूडेमी के ऊपर, मैं बोल बोल के थक गया हूं कि मेरा पूरा कोर्स 1 to Z अवेलेबल है यूडेमी के ऊपर, जिसकी 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, 15 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और एक एक रिकॉर्डिंग से पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, मैंने वीडियो स्लाइड से आपको सिखाया, मैंने उसमें अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाया है, और उसकी मैंने हर एक वीडियो की प्रिपरेशन की है। आपको उस वीडियो के अंदर मैं अच्छा समझा सकता हूँ, या आप मेरे सामने आके बैठ के रैंडमली क्वेश्चंस करेंगे? तो दुनिया के अंदर आज दुनिया जिस जगह पर आ चुकी है,
पूरी दुनिया पे ट्रेनिंग्स जो हैं वो रिमोटली चली गई हैं, वीडियो पे चली गई हैं। आप एक वीडियो पे एक बात आपको समझ नहीं आती, आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, फिर समझ नहीं आई फिर रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, फिर समझ नहीं आई फिर पीछे चले जाइए। मेरे से दूसरी दफा पूछेंगे तो मैं कहूंगा भाई भागो यहाँ से। तो मैं ये उस्मान साहब, ये रिकमेंड क्वेश्चन करता हूँ। आया मुझे कि अगर वीडियोस कुछ लोग देख रहे हैं और उन्होंने कुछ फ्री मटेरियल भी आपका वहां पर मौजूद है, जी वो देखिए, उन्होंने देखा है? हाँ जी जी। मेरे बहुत सारी, मेरी फेसबुक के ऊपर पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। मेरे 2 कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं यूडीमी के ऊपर, मजीद मैं फ्री कोर्सेज वेरी सून अवेलेबल कर रहा हूँ। आप देखिए, मेरा अगर मैं अपने पेड कोर्सेज के भी $149 डिस्काउंट के साथ शायद $100 आपसे लेता हूँ, तो $100 खर्च के मैं आपको ऐसी प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जिनसे मैं मिलियंस मिलियंस रुपीस एवरी मंथ बनाता हूँ, एवरी मंथ। तो आपको क्या ये सौदा एक्सपेंसिव लगता है? आपको 30 डेज, शुभान साहब, यूडीमी 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है कि कोई शख्स यूडीमी से कोर्स बाय करे, बाय करने के बाद उन्हें बोले जी मुझे मैंने ये कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। और भाई बात सुनो, मैं हर एक को वो कोर्स फ्री नहीं दे सकता। आप एक काम कर लो, पाकिस्तानी बन जाओ, कोर्स सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगे उस्मान साहब ने वैल्यू नहीं दी, आपका कोर्स लेने का फायदा नहीं हुआ, तो एक छोटी सी ईमेल आपने, बल्कि ईमेल भी नहीं डालनी, आपने टिकट सबमिट करनी जिडेमी के ऊपर, आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। उस्मान साहब, यहाँ मैं पर नहीं एक समझ। जो क्वेश्चन है प्राइवेटली मुझे, वो ये पूछ रहे हैं कि इफ आफ्टर बाइंग द कोर्स एंड लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट कोर्स, अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप अवेलेबल करवाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, या कोई ग्रुप आप ऐसा कोई स्किलफुल बना रहे हैं कोई? देखिए शुभान, बेशुमार लोगों को तो उनके माँ बाप भी कामयाब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है जी, तो मैं किस बात की मूली हूँ। आ, ये कोर्स और इस कोर्स की प्राइस $149 रखने का एक पर्पस था, और वो पर्पस है सॉरी शुभान साहब, फिल्टर करना नॉन सीरियस लोगों को। मेरे ठीक है। पास बहुत सारे लोग आते हैं गप मारने के लिए, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द से लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। इसने इतने $1000 की सेल की इस महीने, इसने इतने $1000 की सेल की, और ओ जिया उस्मान साहब के पास जाएंगे, उनके पास अलादीन का चिराग है, या वो एक हमें लगाएंगे तो सारा नॉलेज हमारे में ट्रांसफर हो जाएगा और हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। चीजें इतनी आसान नहीं होती। तो आप तमाम लोग जो जो आप सीखना चाहते हो, आप ये कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए बिल्ड किया कि जो जो लोग सीरियस हैं वो मेरे पास आते हैं। जो जो मुझे बैकएंड के ऊपर एग्जैक्टली पता चल रहा होता है, किस किसने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, किसने इसमें बीच में दी गई असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली, और उसके बाद मैं देखता हूँ, फिर मैं उनमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन पर्सन मेरा स्टाफ उनको कॉल करता है, और उनसे फिर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करते हैं कि ओके आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग देखते हैं आपके साथ आप कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जिसमें पोटेंशियल हो, आप हमारे साथ काम कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये 149 या $100 का ये कोर्स है, ये एक मेजर फिल्टर है नॉन सीरियस लोगों के लिए, ताकि हम बिल्कुल सही। लोगों के साथ अपना टाइम जाया न करें। उस्मान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पाकिस्तान और दुनिया के ममालिक मुमकिन तौर पर कब बाहर आने वाले हैं। आप बात समझ रहे होंगे कि ये पैंडेमिक जो है, वो इसके लॉकडाउन जो है दुनिया में कब तक चलेगा, कौन सा महीना है, अंदाजन आपकी अपनी जाती राय इसमें क्या है? क्योंकि ये फाइनेंशियल ब्लास्ट हुआ है इस दफा, बहुत कम दुनिया में ऐसे हुआ है। क्या कहेंगे इसमें? शुभान साहब, मुझे आपकी इस क्वेश्चन के आंसर करने में मुझे फिर एक वाकया याद आ गया। जी। वाकया कुछ इस तरह है कि एक जंगल के अंदर एक गीदड़ भागी जा रहा था और बोल रहा था क्यामत आ गई, क्यामत आ गई, क्यामत आ गई, क्यामत आ गई। तो उसके पीछे बिल्ली भी भाग रही थी, बंदर भी भाग रहा था, हाथी भी भाग रहा था, शेर ने भी भागना शुरू कर दिया। तो शेर ने पूछा कि हुआ क्या है, शेर ने हाथी से पूछा क्या हुआ है, तो हाथी ने कहा क्यामत आ गई। फिर उसने पूछा किसने कहा, उसने कहा जी वो गीदड़ ने कहा। उसने बंदर से पूछा किसने कहा, उसने कहा जी गीदड़ ने कहा।
शेर ने जाके गीदड़ को पकड़ लिया कि भाई बताओ किधर आई क़यामत। तो वो कहने लगा बादशाह सलामत, बस भागो क़यामत आ गई। शेर आगे भाग भाग के थक चुका था, उसने जोर से थप्पड़ मारा गीदड़ को और उसकी गर्दन के ऊपर पांव रख के बोला कि मुझे बता क़यामत किधर है। तो गीदड़ की जब आंखें बाहर आने लगी तो वो कहने लगा बादशाह सलामत मेरी तो देखो क़यामत आ गई है। राइट, सही है। भाई बात सुने आप, दुनिया के अंदर जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कोरोना, भाई पिछले साल 5.5 करोड़ लोग दुनिया में मरे थे, ठीक है, एक साल के अंदर 2019 के अंदर। लेट मी करेक्ट माय फिगर्स, मैं आपको अभी 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 आपको फिगर बता देता हूं जी। दुनिया के अंदर लास्ट साल के अंदर, लेट मी चेक दिस आउट, एक सेकेंड जी, 7 कोरोना करोड़, से हम तो काफी डर गए हैं पैंडेमिक से। 7.5 करोड़ लोग पिछले साल दुनिया 2019 में मरे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना आने की वजह से 70% अमवात में कमी हो गई है, क्योंकि 70% लोगों ने गंदा गोश्त खाना बंद कर दिया है, 70% लोगों ने गंदा कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दिया है, लोग घरों में रह के घरों का साफ गोश्त ले रहे हैं, हवा के अंदर गंदगी खत्म हो गई है, तो 70% जनाब अमवात ऑलरेडी कम हो चुकी है। बाकी रही बात, आप देखें, प्रिपेयर योर सेल्फ द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। ये दुनिया ऐसे तो नहीं रहेगी, क़यामत तो नहीं आएगी। रसूल खुदा ने फरमाया कि क़यामत कायम हो चुकी होगी, और एक शख्स दरख्त लगा रहा होगा, तो दूसरा शख्स उसके पास भागता हुआ आएगा और कहेगा कि भाग क़यामत आ चुकी है, अब दरख्त लगाने का क्या फायदा, ठीक है। तो वो पहला शख्स फरमाएगा कि मेरा काम दरख्त लगाना है, ठीक है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि उस दिन, उस क़यामत के दिन भी वो शख्स जन्नती होगा। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज दुनिया कल खत्म हो रही है, कल तबाह हो रही है। आप बिला वजह ही कोरोना की न्यूज़ देख देख के अपना बीपी हाई कर रहे हो, और टेंशन से, कोरोना से मरे ना मरे, आप लोग हाई ब्लड प्रेशर से या टेंशन से जरूर मर जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए, न्यूज़ पढ़ना छोड़ दीजिए, अपनी आप देखिए मुस्तकबिल की स्किल्स क्या है, उन पे खुद काम कीजिए, खुद सीखिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को सिखाइए और उनके ऊपर काम कीजिए, और आने वाला मुस्तकबिल आपका है, अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए, दुनिया को कोई ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सॉल्यूशन दीजिए जिसमें इस दुनिया के रहने वालों के लिए कहीं पर कोई आसानी हो जाए, कहीं पर कोई शख्स दुनिया में ये बोले कि हाँ, मुझे किसी पाकिस्तानी ने मेरे बिजनेस में हेल्प की, मेरी पाकिस्तानी ने मेरा बिजनेस सेटल करने में हेल्प की, मेरा बिजनेस प्रमोट करने के अंदर हेल्प की, हाँ, एक पाकिस्तानी की वजह से मेरा ब्रांड पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, और मैं उसको आज अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जब तक हम लोग पूरी दुनिया को हेल्प नहीं करेंगे, उनकी मार्केटिंग के अंदर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, दुनिया हमारी कदर नहीं करेगी। आज ना चाहते हुए भी आप एप्पल यूज करते हो, आप ईबे यूज करते हो, आप नेस्ले यूज कर, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और जितनी टॉप की इंटरनेशनल कंपनीज हैं, सब ज्यूज हैं, सब ज्यूज की हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए बगैर किसी तफरीक के, मजहबी तफरीक के, बगैर किसी रंगो नस्ल की तफरीक के, हम लोग कुछ आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे, वो आसानी किसी भी सूरत में हो सकती है, अच्छी प्रोडक्ट बना के, अच्छी सर्विस दे के, तो दुनिया जरूर हमारी कदर करेगी। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, सब व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप पोजीशंस में आ चुका है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो कंप्यूटर से मोहब्बत करते हैं, कंप्यूटर को अपना रोजगार बनाते हैं, वो तो फ्रीलांसिंग करके ये काफी टॉप सेलिंग में आ चुके हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी ब्रांड्स जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके दिन रात इन्हीं ब्रांड्स को बिल्ड करने में है, कब तक ये पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाएंगे? कब तक हमारे, क्या अंदाजा आपका, किस साल तक कितने ब्रांड्स, आपकी नजर क्या कहती है कि हमारे लॉन्च हो चुके होंगे? शुभान साहब, पुरुम्मीद रहना,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान की कदर गिरी है। बांग्लादेश हमसे बाद में आके हमसे आगे निकल गया, अनफॉर्चुनेट। और यही हालत रही, जिस तरह आज से 20 साल पहले पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था कॉटन की एक्सपोर्ट के अंदर। आज वो मुल्क जहां पर हम लोग बोलते थे कि वो लोग जिनको वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता, वो काले बंगाली, आज जिनको हम लोग इस तरह तंज किया करते थे अपनी, आज से 40 साल पहले अपनी मीटिंग्स के अंदर, आज उनकी जिस मुल्क में कॉटन पैदा नहीं होती, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का एक्सपोर्टर है। वो दुनिया में सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। वो दुनिया में फ्रीलांसिंग में हमसे आगे हैं। जब तक शिबान साहब हम लोग अपना नॉलेज शेयर करना शुरू नहीं करेंगे, हमारे ना ब्रांड्स बिल्ड होंगे, ना हम लोग दुनिया में कहीं पर कोई मकाम हासिल कर लेकिन पाएंगे। उस्मान साहब, पाकिस्तान में आप बात करके देखें किसी से भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप पाकिस्तान में किसी से भी बात करें, जब तक कि उसका दिल कुशादा ना हो, आप उसे कोई ऐसी राज की बात पूछें, कोई भी ऐसी बात जो स्किलफुल है या जो हेल्प कर सकती है किसी को, अगला बंदा नहीं तैयार होता। आप तो सारा कुछ ये सीक्रेट ओपन करके बैठे हुए हैं। आप इधर सियालकोट में रहते हैं ना, आप यहाँ सियालकोट में, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, किसी से पूछ के बताएं कि ये फलां काम कैसे करना है, आप देखें उनके कैसे रवैये होते हैं। देखिए, हम लोग सभी बोलते हैं रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। बिल्कुल। लेकिन ये कैसा ईमान है कि जब आप रिस्क दे, आपका ईमान रब की जात के ऊपर है, लेकिन आपसे कोई सीखने के लिए आता है तो आप उसको सच्चा रास्ता नहीं दिखाते। आपके पास जो इल्म है ये तो अमानत है, ये आपका नहीं है। आज आपकी सांस निकल जाए तो आप कल को कुछ नहीं है, मिट्टी। तो मिट्टी और गंद का ढेर है हम लोग, स्वाय उस इल्म के जो हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। शिबान साहब, ये मैं भी मिट्टी हूँ, आप भी मिट्टी हैं, लेकिन ये वीडियो हमेशा हमेशा रहेगी। ये लेगेसी रहेगी आपकी भी और मेरी भी, आने वाले लोग जब तक इससे सीखते रहेंगे। ये वो कुआं है जिस कुएं से जब तक लोग सराब होते रहेंगे, जब तक अपनी मंजिलों का तयन करते रहेंगे, तब तक मेरी और आपकी कब्रें मुनव्वर रहेंगी। हमें ये ईमान रखना है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं टेक्निकली आपको समझाने लगा हूं कि भाई जब किसी मुल्क में किसी चीज की मंडी बनती है तो काम कम नहीं होता, काम बढ़ता है। बढ़ता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि किसी एक शख्स ने कोई बुक्स खरीदनी है पाकिस्तान में, तो उसको उर्दू बाजार सब लोग जाते हैं। उर्दू बाजार में हजारों नहीं तो सैकड़ों शॉप्स हैं और हर शॉप के ऊपर रश लगा होता है। अगर वहां पर जिसकी पहले शॉप थी वो ये सोचता कि मैं सिर्फ अकेला बैठा रहूंगा और इसके अलावा कोई दूसरा आकर यहाँ पर शॉप ना डाले, तो वो कभी भी मंडी ना बनता बुक्स की। इसी तरह अगर अमेज़न जो है, अमेज़न के ऊपर बहुत सारे सेलर्स ना बेच रहे होते तो अमेज़न जो है वो मंडी ना बनता बहुत सारी प्रोडक्ट्स की। देखें आप, मैं अपने कंपेटिटर्स, शिबान साहब, मैं अपने कंपेटिटर्स खुद बनाता हूँ। मैं खुद अपने लोगों को बोलता हूँ लो ये गिल्ड्स बेच लो, लाजमी बेच लो, ओपनली बताता हूँ। क्यों? कि ये कंपेटिटर्स मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं कि मुझे वही है मजीद ना सी, कि मुझे डॉक्टर साहब आगे, ने कहा ना कि मुझे तुम, मुझे कंपटीशन से आगे रहना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा गए हैं ना, तुंदिए बादे मुहालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब अल्लाह पे तवक्कल किया है तो ये आप वाली बात के ये यही सोचना है कि रिस्क देने वाली जात वो है कि मैं अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो इससे दुआओं का सिलसिला जारी होता है। सर, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, तो ये तो हमारा दर्स है जो हमें हमारा मजहब और हमारे शायद इकबाल देते हैं। हमारी हमारी जॉब यही है कि हमें कोशिश करनी है। That's it। जी सही सर। है। तो क्या सर आप समझ रहे हैं कि कितने सालों तक हमारे कितने ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं? मैं तो 5-10 समझता साल में अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हूँ आई सी वेरी वेरी सक्सेसफुल ब्रांड्स पाकिस्तान से होंगे, लेकिन उनके ऊपर शायद मेड इन यूएस से लिखा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ओहो, हम लोग अपनी कोई एग्जिस्टेंस हम लोग जान नहीं पाएंगे, अपनी कौम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे।
एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे सर्जिकल हमारे यहाँ से जाता है, लेकिन हम लोग मेड इन जर्मनी उसके ऊपर लिखते हैं। तो भाई जब तक हम लोग, मैं अपनी एक मेरी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, स्कॉटिश किल्ट रिव्यू आप जाकर चेक कीजिएगा, वहां पर टॉप पर एक वीडियो आएगी जो खतून ने हमारे लिए बनाई। मैंने खुद आज से 2 साल पहले उन्होंने वीडियो हमारे बारे में डाली, तो उसके ऊपर मुझसे आज से 3 साल पहले किसी ने कहा कि भाई आपका नाम तो स्कॉटिश किल्ट है लेकिन प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान है, तो ये आप फ्रॉड कर रहे हो। तो मैंने हर प्रोडक्ट के नीचे मेड इन पाकिस्तान लिखवा दिया, हर जो किल्ट स्कर्ट हमारे यहाँ से जाती है, कोट जाता है, उसके नीचे हमने लिख के लगा दिया कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। तो आज वो हमारा ब्रांड बन चुका है, लोग दुनिया में समझते हैं कि पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर टॉप क्वालिटी किल्ट्स बनती हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। उसके लिए किसी आपको थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है, खड़े हो जाएं आप, अल्लाह ताला आपके साथ है। उस्मान साहब, इसमें एक बात हुई थी कि व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें जो आपकी प्रोसीड्स होती हैं, जो पैसे आपको आते हैं, वो आपकी लीगलाइज करने में उससे कोई मसला होता है, क्योंकि वो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का कोई कॉलम वगैरह या इस तरह की मामला तो नहीं है उसमें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शुभान साहब, ये तो मौज ही मौज है जी, ठीक है। जब तक मतलब आप पाकिस्तान से जितना ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ हर शख्स को आ जाना चाहिए। भाई आप अमेरिका में जो भी आपका क्योंकि टैक्स वालों की क्योंकि मैं टैक्स वालों की आपको अभी इस पे नजर नहीं पड़ी। मैं आपको बताने लगा हूँ कि होगा क्या शुभान साहब। आप अमेरिका में जो भी आपका चाचा, मामा, ताया, फूफा, कजन बैठा हुआ है यूके के अंदर भी, आप उससे बोले कि भाई मैंने तेरे नाम पे कारोबार करना है, और जब मैं आपके नाम पे कारोबार करूंगा तो ये 10 बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे। 10 बेनिफिट्स क्या हासिल होंगे? आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। नंबर 2, आप लोग साल के बाद आप जो है अच्छा जो है आप क्या उसका नाम है, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकोगे। तीसरी, आप बड़ी गाड़ी ले सकोगे। तीसरा, आप चौथा बड़ा घर ले सकोगे। ठीक है, मीन्स शिबान साहब कि आपका जब भी आप बिजनेस करेंगे किसी भी अपने दोस्त के नाम पे, कजन के नाम पे, मामे चाचे के नाम पे, तो आई थिंक उस्मान साहब का थोड़ा सा लिंक शायद डाउन है। सून एज जैसे ही वो मेरे साथ रब्ता होता है तो वी शैल कंटिन्यू। जो उस्मान साहब बात कर रहे थे उसमें बड़ी काबिल जिक्र बात व्यूअर्स ये भी है कि जब इंसान इन चीज़ों के मुतालिक सोचना शुरू कर दे ना कि एक काम उसने करना है, लाइक ब्रांडिंग है, या जिस तरीके से हम अपना ये ई कॉमर्स अगर हम लोग करते हैं उस्मान साहब के कहने के मुताबिक, तो इसमें हमारे पास जो प्रोसीड्स हैं वो मेरा ख्याल है कि जैसे ही आपके पास आती हैं वो बड़ी एक कैंपल अमाउंट होती है। आप एक्सपोर्ट के जरिए से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। एक ब्रांड बिल्ड करते हुए आपको टाइम जरूर लग सकता है, उसके लिए बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे हैं, बड़े से लोग भी काम कर रहे हैं। उससे जो हासिल होने वाली आमदन है वो काफी हद तक काफी काफी ज्यादा होती है। मतलब जब डॉलर की कन्वर्जन जो है वो हमारे लोकल मनी में होती है तो हमें काफी ज्यादा उससे पैसे मिलते हैं। मेरा ख्याल है उस्मान साहब ही इज बैक, तो उस्मान साहब जरा राइट, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। मैं बात कर रहा था, तो उससे उसकी वैल्यू बिल्ड होती है। जितने पैसे आपके किसी भी मामे चाचे फुफ्फे के अकाउंट के अंदर आएंगे अमेरिका के अंदर, उसकी बैंक वैल्यू बनती जाएगी, जिससे वो बड़ा घर ले सकेगा, बड़ी गाड़ी ले सकेगा, बड़ा लोन अप्लाई कर सकेगा। और आप क्या कर सकते हो, आप वो डायरेक्टली पैसे वहां से पाकिस्तान में मंगवाओ और एज ए रेमिटेंस मंगवा लो। जब एज ए रेमिटेंस मंगवाओगे तो आप फिर हुकूमत पाकिस्तान के दामाद हो। हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई प्रोडक्ट, वैसे कोई जायदाद खरीदने के ऊपर कहीं पर आपको कोई पूछेगी नहीं, क्योंकि आपने एज ए वो पैसे रिमिटेंस के तौर पे आए होंगे। आपको हर जगह के ऊपर आप बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशन जीवन फाइल कर सकते हो। तो ये समझता हूँ कि आपके लिए विन विन है। दैट्स द राइट टाइम टू कम इनटू ई कॉमर्स। जब तक हुकूमत इसको लीगलाइज नहीं करती या इसके लिए कोई टैक्स आप समझ लीजिए कि
पैरामीटर्स लॉन्च नहीं होते, हमारे लिए विन विन है, अमेरिका में, यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी। उस्मान साहब, गोइंग टू बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे भी है इस वक्त, मैं एक ये मैसेज मुझे आया, इल्जाम लगाया लोगों ने कि जी उस्मान साहब बड़ी मुश्किल बातें करते हैं, हमें समझ नहीं आती। क्या कहेंगे इस पे? मैं मुश्किल बातें नहीं करता शबान साहब, मैं अमूमी तौर पर सवाल उठाता हूँ, सही, और सवाल समटाइम्स मुश्किल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही। इंसानी जो दिमाग है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, रेजिस्ट करता है। अभी तक भी देखे ना हम लोग, ये जो दुनिया कोरोना को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बेशुमार लोग, जब तक डंडा है वो घरों के अंदर है, अगर डंडा उठा लिया जाएगा तो कोई कोई ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि आज ये कंटेजियन क्या होता है, ये बीमारी एक दूसरे को कैसे लगती है, ठीक है। आज भी हम लोग इसी फलसफे के ऊपर हैं कि हम लोग प्याज खा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीमारियों का इलाज प्याज के जी जी अंदर है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें मुश्किल लगती हैं जो हमें अमूमी तौर पर समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम लोग, कोई शख्स जो अगर कोई कहे कि जी आप, मैं किसी को बोलूँ कि आप 3 लाख रुपए का घर लेके रहना शुरू कर दें, तो किसी के दिमाग में तो ये बात नहीं आएगी, वो कहेगा तुम पागल हो कि मैं 3 लाख का घर दूं। लेकिन शुभान साहब, अमेरिका में 2 मरले का घर जिसमें 2 बेडरूम्स हों और 1 लिविंग हो, उसका किराया मिनिमम 1800 से $2000 है न्यूयॉर्क के अंदर। तो अगर हम लोग वहां पर 3-3.5 लाख रुपए रेंट दे के रह सकते हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी आप रह लें, भाई फ्रीलांसिंग करो, वहां पर बैठ के भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यहाँ पर भी बैठ के फ्रीलांसिंग कर लो। 3-3.5 लाख रुपए में तो पूरा महल मिल जाएगा आपको शायद, जी या बिल्कुल। शायद पूरे पूरे शहर में कोई घर ऐसा हो ही ना जिसका इतना किराया हो, ठीक है। पूरी बिल्डिंग ही लेनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए ये बातें मुश्किल हो जाती है समझने की, कि आप, हम लोग हर चीज को अपने पैरामीटर्स के हिसाब से समझना चाह रहे होते हैं, जैसा हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। लेकिन जब हम लोग ऐसी दुनिया की बात करता हूँ, मैं यूरोप की, अमेरिका की, फर्स्ट वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो वो हमें इसलिए बातें समझ में, बात बताने में मुश्किल होती है कि वहां पर चीजें डिफरेंट पैरामीटर्स से देखी जाती हैं। सही है उस्मान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है कि आप उसको पाकिस्तान के सियालकोट से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद फिर ओवरसीज पाकिस्तानी तक आप अपने यूडेमी के कोर्स के जरिए से जाएंगे, या कोई और भी इसको वासन करने का प्रोग्राम है आपका? शुभान साहब, रसूल खुदा ने हजरत अली को फरमाया कि अली, तेरी तेरी बख्शिश के लिए किसी एक शख्स का हदायत पर आ जाना ही काफी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली किसी को हेल्प करना, बगैर रंगो नस्ल के, बगैर मजहब के, बगैर किसी मुल्क की बाउंड्रीज के। बेशुमार लोग इंडिया से फॉलो कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग वहां से फॉलो कर रहे हैं वो भी अपना काम करें। वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए। जब हमारे रसूल खुदा ने फरमा दिया कि किसी को किसी पे कोई बढ़तरी नहीं है, ना गोले को काले पे, ना काले को गोरे पे, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे, ये बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं जो आज फर्स्ट वर्ल्ड हमको दे रहा है, तो हमें इसको अवेल करनी चाहिए। जहां तक मेरी बात है, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है शबान साहब, इसलिए मैं अंग्रेजी में कोर्स बिल्ड नहीं कर सकता। आ जाके मुझे उर्दू आती है या पंजाबी आती है, तो मेरे ख्याल से पंजाबी भी अभी उर्दू बोलना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने उर्दू लैंग्वेज का इंतखाब किया, जिसके अंदर मैंने अपनी जो प्रैक्टिसेस थी अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिहाज से मैंने शेयर की। बाकी इंग्लिश के अंदर मेरे से बहुत अच्छा कंटेंट लोगों ने बिल्ड करके इंटरनेट पर डाला हुआ है। लोग ऑब्वियसली जो वहां से सीख सकते हैं वो वहां से जाए और सीख लें। जी बिल्कुल। उस्मान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका भी ताकि व्यूअर्स भी देख लें कि बड़ा मुश्किल काम समझते हैं लोग एक ब्रांड बनाने के काम को, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मुश्किल काम है कि आसान काम है? शुभान साहब, कोई काम जो है वो स्टार्ट करने से पहले मुश्किल होता है। ठीक। जब आप स्टार्ट कर देते हो तो उसमें कोई मुश्किल नहीं रहती। मैं आपसे ये, जिस दिन आपके अकाउंट में पहले दिन डॉलर्स आ जाएंगे, Hamad साहब is saying
He speaks English very well. Sir, thank you so much अहमद साहब, आपकी बड़ी नवाजिश। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब एक बहुत अच्छा कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है तो मुझे उसमें मज़ीद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जहाँ तक काम की बात है, प्लीज आप स्टार्ट कर दो बस। आपके पास डॉलर्स आने की देर है, डॉलर्स आने की देर है, तो उसके बाद नो वन कैन स्टॉप यू। आपके पास जब रोज धड़ा धड़ बैंक के अंदर पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, तो फिर आप जो है जरूर इसको सोचोगे कि यार मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्यों नहीं ये काम स्टार्ट किया। बिल्कुल सही है। जी बिलाल बिलाल साहब क्वेश्चन कुछ पूछे हैं उन्होंने, मैं कोशिश करता हूं कि वो स्क्रीन पे आपको भी शेयर हो जाएं। बिलाल साहब के क्वेश्चन जो हैं, बिलाल साहब आप दोबारा मैसेज कर दें, बड़ा कंसाइज मैसेज कीजिएगा, टाइम शॉर्ट है मेरे पास। ये बिलाल साहब ने क्वेश्चन किया है टैक्स के ऊपर, हाउ विल यू जी how they will differentiate tax issues as we are going to name our businesses on others in UK or USA. जी I'm not sure कि बिलाल साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, how they will differentiate tax issues as we are going to name our भी अगर हम यहाँ बैठ के ब्रांड लॉन्च करते हैं तो टैक्स पाकिस्तान में भी देंगे और वहां भी देंगे, डबल टैक्सेशन होगी। अच्छा पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की, दैट्स वेरी गुड ऑप्शन। पाकिस्तान की और यूएसए की टैक्स ट्रीटी साइन है। आप अगर अपना पाकिस्तान में आपका कोई नेम है, कोई ब्रांड है, आप अमेरिका के अंदर, मैं सबको रिकमेंड करूंगा अपनी ब्रांच के तौर पे अपना बिजनेस खोलें। आपकी कोई पाकिस्तान में कंपनी है, आप उससे सेलिंग कर रहे हो, अमेरिका में कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो उसी नाम की ब्रांच के तौर पर अमेरिका में ऑफिस खोलें। इससे इवन आपको वीजे में आसानी होगी, लेटर ऑन आप इमिग्रेशन अगर लेना चाहोगे अमेरिकन, उस पर आसानी होगी, और टैक्स जो है आप अमेरिका में दे दो, पाकिस्तान में दे दो, तो अगर आप अमेरिका में भी टैक्स दोगे तो पाकिस्तान में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की टैक्स ट्रीटी साइंड है। जी बिल्कुल, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं उस्मान साहब, बिकॉज आई एम ए लॉयर टू और टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो इसमें एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट के नाम की ऑप्शन है हमारे पास टैक्सेशन के अंदर, जिसमें जो टैक्सेस आप बाहर पे कर चुके होते हैं उनको पाकिस्तानी इनकम के साथ क्लब किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है। उसके बाद एक फार्मूला लगाया जाता है जिससे आपको फॉरेन के टैक्स की रियायत पाकिस्तान में मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उस्मान साहब हम अपनी बढ़ रहे हैं इस यहाँ पर मैं एक चीज आप बहुत सारे लोगों को क्लियर करता चलूं कि भाई टैक्स जो होता है आपकी इनकम के ऊपर होता है, नेट इनकम के ऊपर, ग्रॉस इनकम पर नहीं होता। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, यस, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जी अमेरिका के अंदर मेरी $5 लाख की सेल हो गई है तो मैं अब क्या करूंगा। और भाई उनका जो प्रेसिडेंट है वो फखर से बोलता है मैंने आज तक टैक्स दिया ही नहीं। उनका प्रेसिडेंट बोलता है मैंने आज तक कभी टैक्स दिया ही नहीं। उसकी रीजन ये है, ये मैं आपको डिफरेंस समझाता चलूं कि हर वो शख्स जो कैश पे बिजनेस करता है वो टैक्स देता है, जो क्रेडिट पे बिजनेस करता है वो टैक्स कभी नहीं देता। चाहिए भाई मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक दिन फोन किया, यार मैंने हमर ले लिया, हमर इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार। तो मैंने कहा, उसको कहा कि बेवकूफ आदमी, तुम्हें हमर लेने की क्या जरूरत थी, तुमने इतनी एक्सपेंसिव कार क्यों ली। कहने लगा यार अगर कार ना लेता तो कंपनी मेरी प्रॉफिट में चली जानी थी, प्रॉफिट में चली जाती तो टैक्स देना पड़ना था, तो जितना मैंने टैक्स देना था उसको मैंने गाड़ी ली है, जब मैंने गाड़ी ली है तो मेरी कंपनी नेट लॉस में चली गई है, जब नेट लॉस में चली गई तो मैं हुकूमत से रिफंड मांग लूंगा। ठीक है, सो दीज आर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं और ये लेजिटिमेट है, ये इलीगल नहीं है। तो आपको ये समझना है बिजनेस इज अबाउट, मैं ऐसी नई प्रैक्टिसेस करता कि हमर ले लूं सिर्फ टैक्स ना देने के लिए, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस बिजनेसेस करते हैं और इसके अंदर कोई गलत नहीं है। आपकी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, आप अपने ऑपरेशंस के लिए अगर गाड़ी ले रहे हैं और उससे आपकी कंपनी नेट लॉस में जा रही है तो इट्स ओके। उस्मान साहब मेरा ख्याल है कि आज बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू हुई है इसके अंदर। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस का मेन स्लोगन भी था
کہ وہ آپ کی سکرین پر ہے. سر دیکھیے گا کہ کچھ ہمیں اس ساری میٹنگ جو 1 گھنٹہ 9-10 منٹ پہ چلی گئی ہے اس کا کنکلوڈ کر دیں, کوئی خوشخبری ہمیں ایسی سنائیں جو پاکستان کے لیے ہیں, جو سیالکوٹ کے لیے ہیں, جو پنجاب کے لیے ہیں, سندھ کے لیے ہیں, KPK کے لیے ہیں, اوور آل پاکستان کے لیے ہیں. وہ چند ایک خوشخبریاں ہمیں سنا دیں جس کے لیے ہم سب لوگ لائیو آپ کو اور مجھے سن رہے ہیں. شبان صاحب, خوشخبریاں ہمیشہ کام کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی, یہ اتنی آسان نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا را کام کرنا شروع کر دیں. نیٹ فلکس جو ہے اس کا ٹائم ذرا کم کر دیجئے, فیس بک لائیو جو ہے اس پہ یوٹیوب پر ٹائم کم کر دیجئے, فوکس ہو کے آپ کام کریں. اور یہ یقین رکھیے کہ پاکستان آپ کا گھر اپنا ہے. امریکہ میں 90% لوگوں کے اپنے گھر نہیں, مورگیج کے اوپر رہتے ہیں. آپ کا گھر آپ کے ابا کا ہے, روٹی آپ کو اما پکا کے دے دیتی ہیں, یا گھر کے اندر شادی شدہ تو بیگم صاحبہ دے دیتی ہوں گی. آپ کو کیا کرنا ہے, ایک لیپ ٹاپ لینا ہے, بیٹھے انٹرنیٹ کے اوپر, کاؤچ کے اوپر بیٹھو, یوٹیوب پہ چلے جاؤ, یوڈیمی کے اوپر چلے جاؤ, ہماری جو پورٹل ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں ہیلپ پاور کا, اس کے اوپر چلے جاؤ اور جا کے کورس کرنا شروع کر دو. اور آپ اس دنیا کو, یہ جو گلوبل ورلڈ ہے, 7.6 بلین جو وزٹرز ہیں, دنیا کے لوگ ہیں, وہ آپ کے کسٹمرز, پوٹینشیل کسٹمرز بن سکتے ہیں. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا انہیں سسٹینیبل, ریلائبل, کوالٹی پروڈکٹس اور سروسز دے سکتے ہو, تو پوری دنیا آپ کی طرف کھینچی چلی جائے گی. اس زمانے کے اندر دیکھیں, کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہے, اس کی لیونگ کاسٹ بہت زیادہ ہے, کوئی شخص UK میں رہتا ہے, اس کی لیونگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنی لیونگ کاسٹ آپ کی کوئی نہیں ہے. آپ اچھے مارجن کے اوپر پلیز سستی پرائز پہ مت بیچنا. جس پرائز کے اوپر انٹرنیٹ پر چیزیں بک رہی ہیں ان سے تھوڑے سے کم مارجن کے ساتھ, تھوڑی سی پرائز 5-10% پرائز کم کر کے آپ بیچیے, اور وہ جو جی عثمان صاحب, گریٹر مارجن ہے اس سے اپنی ویلتھ بلڈ کیجیے, اپنا ملک بلڈ کیجیے. بالکل عثمان صاحب, ویری لاسٹ کوشچن مجھے یہ بھی موصول ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر میکرز جو ہیں, مینوفیکچررز جو ہیں, وہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اس میں سے کچھ جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریوں کو, برانڈز کو مال دیتے ہیں بنا کر, اپنا ان کا کوئی نام نہیں ہے, وہ مال بنانے کے پیسے لیتے ہیں. مجھے یہ سوال آیا کہ کیا مینوفیکچرر جو میکرز ہیں وہ برانڈز کی طرف آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, کیونکہ وہ مائٹ پاسبل کہ ان میں اتنی ٹیکنیکل سکلز نہ ہوں. ہاں یا نا میں سر جواب دیجیے گا, پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں, کافی زیادہ لمبی میٹنگ ہو گئی ہے. ہاں شبان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انٹر ڈیپینڈنسی کے اندر کامیابی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے کے لیے بھی ماں باپ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ فارچونیٹ یا انفارچونیٹلی کسی چیز کی میکری کرتے ہو تو بھائی فائنڈ یور پارٹنر. اس ملک میں لاکھوں گریجویٹس گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کو ضرورت ہے کسی اچھے میکر کی. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جاؤ, اگر آپ کوئی چیز مینوفیکچرنگ کرتے ہو, خدا را اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھو, کوئی بیٹا ہے, کوئی بیٹی ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہے, اس کو بولو کہ بھائی میں تمہیں عثمان صاحب کا کورس خرید کے دے دیتا ہوں, میرا کورس نہیں خریدنا, انٹرنیٹ کے اوپر میں بتا دیتا ہوں تم نے کیا پڑھنا ہے, میرا بیٹا یہ پڑھو, اور یہ پڑھنے کے بعد میں یہ پروڈکٹ بناتا ہوں اور پوری دنیا میں بیچتے ہیں. آپ اپنا جو بھی لوکل بزنس ہے آپ وہ کرتے رہو, اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ سائن کر لو, اس کے ساتھ امریکہ میں سائن کر لو, کسی کے ساتھ UK میں سائن کر لو, کسی کے ساتھ فرانس میں سائن کر لو, کسی کے ساتھ یورپ رشیا میں سائن کر لو. اور اس کے بعد آپ کا کام کیا ہونا چاہیے, کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنا, اس کی مینوفیکچرنگ کرنا, اور اپنی سپلائی لائن مینٹین رکھنا. اور جو پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے پڑھے لکھے بچے ہوں گے, وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتی ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں, تو ہم آپ کی پروڈکٹ پوری دنیا کے اندر بیچیں گے. ہمیں آج یہ نہیں سیکھنا کہ مینوفیکچرنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ ہمیں سیلنگ آتی ہے, اور آپ کو یہ نہیں سیکھنا کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. آپ جی اپنی بالکل. اولاد کو ڈالیے, اپنے فیملی ممبرس کو ڈالیے, اپنے محلے کے لوگوں کو ڈالیے, مل کے ہم لوگ مل کے بنے گا ایک اسٹرانگر پاکستان, ایک اسٹرانگر اکانومی. عثمان صاحب کافی لمبا سیشن ہو گیا, ویورز کا بہت شکریہ, وہ اتنی دیر سے ہمیں سن رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن یہ سب آپ کے لیے تھا جی. اور مجھے اور عثمان صاحب کو اس کو ری ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ ایسے ایشوز تھے جو میرے ذریعے سے پوچھے گئے,
اور ہم نے ایک اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ان سے لیے. عثمان صاحب ایک آخری 2-3 جملے بول دیں جس میں کچھ دعا دے دیں ہم سب لوگوں کو, پاکستان کو, مجھے بھی شامل کر لیں اس میں. شبان صاحب بہت نوازش, میری دعا بس یہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر, اس ملک کا حامی ناصر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. ہم لوگوں کے اندر سے ایسے ایسے لوگ, عیدی جیسے لوگ بھی نکلتے ہیں جو پوری ملک کی خدمت کرتے ہیں. ہم میں امجد ثاقب صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں. پوری یہ بڑی خاص قوم ہے شبان صاحب, یہ بڑی خاص قوم ہے. The day we decided, ہمیں اپنے آپ کے اوپر یقین آ گیا, پوری دنیا کی کوئی قوم ہمیں, کوئی شخص ہمیں نہیں روک پائے گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ چیزوں کے ساتھ, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے لیے, اپنے ملک و قوم کے لیے کوشش کرو, اپنے لوگوں کی آسانی کے لیے کوشش کرو. اللہ آپ کی آسانیوں کا باعث بنے گا. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. عثمان صاحب بہت شکریہ آج کے سیشن کا, اور امید ہے کہ اس سیشن میں سب لوگوں نے کافی زیادہ کویشچن جو کیے تھے, بھیجے تھے. میں نے کوشش کی کہ عثمان صاحب سے وہ اندر کی باتیں ساری نکلوا لوں, اور ہوپ فلی نکل آئی ہوں گی ساری جو کنفیوژنس تھی لوگوں کے ذہن میں برانڈس کے متعلق, ای کامرس کے متعلق. شاید ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تھوڑی سی ڈسکس ہوئی ہے, ای بے اور امیزون بھی ڈسکس ہوا ہے, میکرز بھی ڈسکس ہوئے ہیں, پاکستان کے آئندہ حالات بھی ڈسکس ہوئے ہیں, خوشخبریاں جو ہیں وہ صرف کام کرنے سے آئیں گی, یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. تو امید ہے کہ یہ لائیو سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو مجھے بھی آپ بھیج سکتے ہیں. مرزا شعبان ظفر میرا نام ہے, عثمان چغتائی صاحب ہیں, دونوں فیس بک پر موجود ہیں, پیجز بھی ہیں. تو دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ عثمان صاحب کو اور ان جیسے جتنے بھی لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں, پاکستان کا بھلا سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور جو کام جس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ نیک نامی ہے پاکستان کی ہماری, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے عثمان صاحب, آپ کو بھی اور سارے ویورز کو بھی. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد جی, آئندہ. پائندہ باد. تھینک یو. السلام علیکم.